Hello viewers, a very warm morning to you all. Welcome to the FB live session of Epic Hospital, an ultra-modern multi-speciality state-of-the-art hospital with an aim of providing world-class healthcare at an affordable rates in the heart of Ahmedabad. Dear viewers, we will today be discussing about shoulder two-hand problems, diagnosis and its treatments with Dr. Keyur Butch. Dr. Keyur Butch, he is the first and only orthopedic surgeon in India with full British accreditation and post-USMLE American Clinical Orthopedic Fellowship with over 25 years of experience in joint replacements, failed orthopedic surgery cases, shoulder, hand, elbow problems. 25 years of experience in London and USA. Previously at Hinduja Hospital, Mumbai and helped Fortis Hospitals establish advanced orthopedic services in Bangalore. So welcome sir to our FB live session. Thank you so much for joining us. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी का स्वागत है एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद से. दिस इज डॉक्टर केयूर बुच, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, and I specialize in shoulder, knee and hand surgery, both replacement and arthroscopy as well as fracture care. And we are ready to take questions and interaction about shoulder, elbow and hand problems today. यानी आपके कंधे के प्रॉब्लम, कोनी यानी एल्बो एंड रिस्ट एंड हैंड यानी कलाई और हाथ, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में हम आज आपसे लाइव इंटरैक्टिव जुड़ेंगे. आपकी कमेंट्स, क्वेश्चन आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं तो हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे. Yes, so viewers, before Dr. Keyur and me start the discussion, we would request you all, as doctor said, to post all your doubts and questions in the comment section below. We will try and answer them too. So sir, can we start the discussion? Sure. Okay, so the viewers would like to know that what is the upper limb, arm and forearm? तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अपर लिम्ब जो है अपने ह्यूमन बॉडी का वो पोर्शन है, वो कंधे के ऊपर से शुरू होता है और हाथ की उंगलियों तक का जो पोर्शन है, जिसको उसके वो पूरे पोर्शन को अपर लिम्ब बोलते हैं. आर्म इज द पोर्शन, ARM, आर्म इज द पोर्शन बिटवीन शोल्डर टू एल्बो and forearm is the portion between elbow to wrist. Okay, so doctor, frozen shoulder किसे कहते हैं? फ्रोजन शोल्डर एक मेडिकली बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है, बट जनरल पब्लिक यूजेस दैट वर्ड और फ्रेज फॉर एनी शोल्डर प्रॉब्लम, विच इज नॉट करेक्ट. अच्छा, बट okay. फ्रोजन शोल्डर itself means that your shoulder has become stiff and painful. You can't sleep on that side and you can't move it properly. Okay, so what are the definitive treatments for the significant frozen shoulder? So frozen shoulder जो है उसकी शुरुआत की ट्रीटमेंट में medications are used, if suitable, then physiotherapy, and if the person does not respond to physiotherapy, then we do other treatments like injection treatment, manipulation and arthroscopy, surgery using special laser treatment. Okay, and what are the causes of shoulder pain? Shoulder pain generally क्यों होता है? So first of all, let me tell you कि how common it is. During the lifetime, 14% of the people will get shoulder pain problems. अगर आप अहमदाबाद की 1 करोड़ की पॉपुलेशन ले लें तो करीब 14 लाख लोगों को, 14 lakh people will have undiagnosed or untreated shoulder origin pain problem. So it's a huge problem. और इसका निदान उतना नहीं होता है जितना नी जॉइंट का होता है. वैसे 25-30 साल पहले नी जॉइंट का प्रॉब्लम का भी निदान उतना नहीं होता था, बट नाउ इट इज वेरी कॉमन. सिमिलरली नाउ पीपल आर रियलाइजिंग दैट यू नीड योर आर्म्स एंड शोल्डर प्रॉब्लम आर बीइंग डायग्नोस्ड मोर क्लियरली. Correct. So doctor, would you like to discuss more about the shoulder problems? Yes. So if you take out the fracture, इन्फेक्शन और कैंसर, क्योंकि वो सब चीजें भी हड्डियों को अफेक्ट कर सकती हैं, देन देर आर सो मेनी अदर कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन विच आर वेरी कॉमन. एक है जिसको सबएक्रोमियल इम्पिंजमेंट बोलते हैं, जहाँ की ये जो शोल्डर की का जो बॉल है और ऊपर की हड्डी है उसके बीच में ये जो स्नायु है वो चुभता है, क्योंकि यहाँ हड्डी बढ़ जाती है उम्र के साथ, घिसारे के साथ वगैरह के लिए.
फिर कभी कभार ये स्नायु में टेयर और डैमेज होता है जिसको रोटेटर कफ टेयर बोलते हैं। कभी कभार फ्रंट में बाइसेप्स टेंडन आता है, उसको डैमेज होता है, उसको लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडिनोसिस बोलते हैं। फिर ये मसल और हड्डी के बीच में पतली लाइनिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने से थिक हो जाती है जिसको बर्साइटिस बोलते हैं। एंड आर्थराइटिस जो घुटने में होता है, ऐसा शोल्डर जॉइंट में भी बॉल और सॉकेट के बीच में हो सकता है। और दूसरी चीज जो शोल्डर डिसलोकेशन और इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, जो इंजरी से होता है। सो दीज आर द वेरी कॉमन कॉजेज ऑफ शोल्डर प्रॉब्लम, नॉट जस्ट द फ्रोजन शोल्डर। Oh, correct. So, doctor, what are the best diagnosis and treatment for the shoulder origin pain? तो सी, वेरी गुड क्वेश्चन। बेस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो ये समझने की बात है कि बिना निशान का तीर और बिना निदान की सारवार कहीं भी जा सकते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने पहले 6 महीने में मेरे पास आने के पहले सिर्फ पेन किलर टेबलेट्स में 30-35 हजार का खर्चा किया है और उनकी कंडीशन अच्छी तो नहीं हुई, क्योर नहीं हुई, पेन दबा मगर वापस आ गया और अंदर का डैमेज बढ़ता चला। तो इसीलिए सही निदान इंपॉर्टेंट। सही निदान कैसे होता है? ऐसे सीनियर एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जिन्होंने क्रेडिबल ऑर्थोपेडिक शोल्डर सर्जरी की ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास ली हो, उनको सही में पता है कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं आपके शोल्डर पेन के बारे में। ठीक हो जाएगा, मुझे भी फ्रोजन शोल्डर है, दिस आर ऑल रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ शोल्डर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जनरल ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन। तो वो भी आपका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसने उसमें ट्रेनिंग ली है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी, नाउडेज इन इंडिया वी नीड टू रियलाइज इन द न्यू इंडिया दैट ट्रेनिंग मेक्स अ पर्सन, not your background, not your intelligence, not your social contacts, not your fame, not your popularity, not the number of patients sitting outside your waiting room. No. Did you have credible training? That allows you to give best diagnosis in good time to the patient. Best treatment की बात आपने पूछी, तो शुरुआत में simple painkillers like paracetamol can help some people. Some patients may benefit from short course of anti-inflammatory दवाई जैसे कि कॉम्बीफ्लैम है, डिक्लोफिनाक है, वगैरह वगैरह। शॉर्ट डोज, ज्यादा लेने से किडनी को डैमेज होता है, तो यू शुड नॉट टेक एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है और हार्ट को भी डैमेज हो सकता है। और फिजियोथेरापी, इन चीजों से अच्छा नहीं होता है तो फिर शोल्डर में इंजेक्शन दिए जाते हैं, टारगेटेड एक्सपर्टली गिवन इंजेक्शन। उससे काफी मेरे पेशेंट्स जो मैं प्रदेश में ट्रीट करता था, आज यूके, जर्मनी, यूएसए में वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और यहाँ मैंने भी शुरू करी है। और लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंजेक्शन ट्रीटमेंट से मिला है। मगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो इन सब चीज़ों के बावजूद अच्छे नहीं होते, उनके लिए हम दूरबीन डाल के की होल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और वी यूज स्पेशल लेजर ट्रीटमेंट बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअली बाइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी विच हेल्प्स रीजनरेट द टिश्यू एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। और शोल्डर की मूवमेंट, स्ट्रेंथ और वापस मिल सकता है और आपका पेन भी चला जाता है। Oh, that is a very good information, doctor. So, doctor, आजकल हम बहुत सारे ऐसे young people देखते हैं जिनके shoulder dislocate हो जाते हैं due to some or the other reasons. So, is there any cure for that? Yes, तो जो shoulder dislocation है is very common in young people, especially young males after injury, and below the age of 30 it is actually a serious condition. क्यों? क्योंकि 80%, now you see, you need to know this, 80% of young people who dislocate the shoulder will dislocate it again. यानी कि आपने जो पहली सारवार ली वो फेल गई। अगर वो सारवार सक्सेसफुल होती तो वो शोल्डर वापस डिसलोकेट नहीं होता। नाउ इफ, मगर लोग क्या है कि कन्वीनियंस के लिए शोल्डर को बिठा दिया, झोली में हाथ डाल दिया। नाउ इफ आई टेल यू दैट ट्रीटमेंट आई एम डूइंग has 80% failure rate, would you have that treatment? Now how do you decide, how do I decide कि ये आपका जो शोल्डर डिसलोकेशन है वो 80% फेलियर वाला है या 20% अपने आप हील वालों में होने वालों में से है? उसके लिए स्पेसिफिक फाइंडिंग्स MRI स्कैन में देखे जाते हैं जब आपका शोल्डर डिसलोकेशन होता है उसके तुरंत बाद। अगर शोल्डर की जो लाइनिंग है और लाइनिंग के बाहर जो गद्दी होती है वो खिसक गई है तो समझ लीजिए कि 100% आपका शोल्डर वापस डिसलोकेट होना ही होना है। उसको हम रिपेयर करके वापस बिठा सकते हैं, देन द चांस ऑफ फेलियर इज लेस देन 5%।
तो समझ लीजिए कि 100% फेलियर विद नॉर्मल ट्रीटमेंट एंड 95% सक्सेस विद द रिपेयर टेक्निक यूजिंग की होल ओनली दूरबीन से सारवार करके। मगर शोल्डर डिसलोकेशन में दूसरा वो भी देखा जाता है कि आपका शरीर का लिगामेंट्स काफ़ी लूज हो तो फिर कभी कभार फिजियोथेरापी करनी पड़ती है और सर्जरी का रोल उन केसों में कम होता है, खास करके यंग लेडीज में। Okay, so स्पोर्ट्स में इट्स वेरी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। yeah, correct. So viewers, correct treatment is very very important. Please note that. So doctor, what are the other common problems people face in their upper limb? तो जैसे हमने शुरू में बताया, अपर लिम्ब जो कि एक प्रॉपर इंग्लिश फ्रेज है, उसको अमेरिका वाले अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। सी अमेरिकन्स हैव चेंज्ड एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज टू सूट देयर रिक्वायरमेंट, बट सो अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटी again I will tell you is the portion of the body from shoulder all the way to the hand, और उसका जो मैकेनिज्म है वो लोअर लिम्ब यानी हिप, नी और एंकल से बहुत अलग है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि अपने देश में इंडिया में ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग जो 3 या 4 साल की होती है, जो कि प्रदेश में 6 से 10 साल की होती है, उसमें शोल्डर और अपर लिम्ब का ज़्यादा ट्रेनिंग आज भी नहीं है। 99% ऑफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को उनका फॉल्ट नहीं है, सिस्टम का फॉल्ट है। सो पहले में हम वो बताना चाहेंगे कि अगर आज मेरा ये प्रोग्राम कोई मेडिकल एजुकेटर्स देख रहे हैं तो अपने वहाँ ऑर्थोपेडिक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को कंप्लीटली चेंज करने की ज़रूरत है, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है, सो दैट द पेशेंट्स बेनिफिट इन द लॉन्ग रन एंड द डॉक्टर्स प्रैक्टिस ऑन द बेस ऑफ गुड नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अपर लिम्ब के बाकी के प्रॉब्लम शोल्डर के सिवा, तो एल्बो में टेनिस एल्बो बहुत कॉमन है, और समझ लीजिए कि कम से कम 2.5% पीपल विल हैव टेनिस एल्बो एट एनी गिवन टाइम। तो अहमदाबाद में आपको 2.5 लाख लोग मिलेंगे कि जो टेनिस एल्बो लेकर घूम रहे हैं। 50% ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस विल हैव टेनिस एल्बो टाइप ऑफ पेन एट सम स्टेज। नाउ टेनिस एल्बो है क्या? सिर्फ टेनिस खेलने से नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो नॉर्मल, जैसे समझ लीजिए कि हाउस वाइफ है जो घर में काफ़ी काम करती है। आजकल लेडीज़ का डबल जॉब हो गया, ट्रिपल जॉब है एक्चुअली। एक तो है वर्क है, जैसे ये मैडम हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग टुडे। फिर वो घर पे जाके भी थोड़ा कुछ कुकिंग ये वो करेंगे, फिर बच्चे भी होंगे, उनका भी केयर करेंगे, स्कूल के लिए ड्राइविंग पे भी जाएंगे, कपड़े भी निचोएंगे। तो ऐसे लेडीज पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। उसमें क्या होता है कि एल्बो के साइड का जो स्नायु है, टेंडन, वो डैमेज हो जाता है अंदर से। अंदर की जो हड्डी है उसके ऊपर प्रेशर आने से वो स्नायु को अंदर से डैमेज करती है। पहले लोग समझते थे कि टेनिस एल्बो वो सिर्फ स्नायु का प्रॉब्लम है। नाउ वी नो कि इट इज नॉट जस्ट स्नायु का प्रॉब्लम, एल्बो जॉइंट की इंस्टेबिलिटी के हिसाब से स्नायु को डैमेज होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंडिनोसिस, टेंडन का डैमेज, नॉट टेंडिनाइटिस। अभी उसकी सारवार क्या है? टेनिस एल्बो में होता क्या है? यहाँ दर्द होता है, फिर हम आर्म स्ट्रेच करके वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो दर्द बढ़ता है, और ग्रेजुअली इफ़ यू लीव इट अनट्रीटेड तो वो बढ़ता ही चलता है, और टेंडन को मोर एंड मोर डैमेज, ज़्यादा और ज़्यादा डैमेज होता है। तो उसकी सारवार सबसे पहले तो सही निदान करना चाहिए, जो हमने शोल्डर में बताया। बाद में उसकी सही सारवार के लिए शुरुआत में आप सिंपल टैबलेट ले सकते हैं, थोड़ा एल्बो को रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा शेक कर सकते हैं, और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि गर्म पानी का शेक किया या बर्फ़ का किया तो अच्छा या बुरा। हर एक पेशेंट क्वेश्चन पूछता है। मलने के लिए क्रीम आते हैं, वो भी लगा सकते हैं पेन के। पहनने के लिए टेनिस एल्बो का क्लास्प आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, काफ़ी लोगों को इनसे फ़ायदा हो जाता है। जिनको इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता है उनके लिए अलग अलग इंजेक्शन ट्रीटमेंट है, जो कुछ पेशेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा करते हैं, कुछ पेशेंट को टेम्पररी, और कुछ पेशेंट को फ़ायदा इंजेक्शन के बावजूद नहीं होता है। और इंजेक्शन में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लोकली एक्टिंग स्टीरॉयड होता है, वो वहीं रहता है, आपके शरीर में नहीं जाता है। तो स्टीरॉयड का नाम सुन के आपको घबराना नहीं है। इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस। आपके बॉडी में जो स्पोर्ट्स वाले स्टीरॉयड की टैबलेट पंप करते हैं वो अलग चीज़ है, और ये यहीं एक्ट करने वाला स्टीरॉयड जो इन्फ्लेमेशन कम करता है वो अलग है। सो अदरवाइज कंट्रीज विच आर मोर सेफ्टी कॉन्शियस देन इंडिया लाइक जर्मनी और यूके और यूएसए वुड नॉट अलाउ इट। तो ठीक है,
तो भड़किए मत कि किसी ने बोला कि स्टीरॉयड इंजेक्शन देना है तो पूरे घर में हाँ हाँ मच जाती है। अपने वहाँ क्या है कि हर एक चीज़ में रोना धोना बहुत होता है, बिकॉज एज इंडियंस वी वेयर अवर हार्ट्स ऑन अवर स्लीव्स। तो छोटी सी भी प्रोसीजर होती है तो काफ़ी कुछ इट इज़ क्यूट, बट यू हैव टू गो विद एविडेंस बेस्ड एडवाइस, नॉट जस्ट ओपिनियन, एविडेंस बेस्ड एडवाइस। तो एक ये इंजेक्शन स्टीरॉयड का है। दूसरा जो है वो पीआरपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आप ही के ब्लड सैंपल में से लेके उसको कुछ ग्रोथ सेल्स निकाल के यहाँ इंजेक्ट किया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर का हुआ था अर्ली 2000s में। उन्होंने लंदन में करवाया था, एंड आई नो द होल स्टोरी अराउंड इट, बट आई विल नॉट गो इनटू ग्रेटर डिटेल। आई वाज आल्सो देयर इन यूके एट दैट टाइम। एंड तो काफ़ी सब ये ट्रीटमेंट्स टेनिस। और लास्ट रिजोर्ट जो हमने यहाँ शुरू किया है पहली बार गुजरात में, इंडिया में फर्स्ट टाइम आई डिड व्हेन आई केम फ्रॉम यूके इन बेंगलोर इन 2009। और इसको बोलते हैं, आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड, बट सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, रीजनरेटिव ट्रीटमेंट फॉर टेनिस एल्बो। उसमें क्या होता है कि स्नायु के अंदर जो डैमेज हुआ है टेंडन, उसमें हम बाईपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी एट ए सर्टन डोजेज एंड सर्टन मेथड से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो टेंडन में नया सर्कुलेशन लाता है और जो कोलाजन है उसका रिफॉर्मेशन होता है। साथ में जो एल्बो जॉइंट लूज होता है तो उसकी कैप्सूल को भी हम थोड़ा टाइट करते हैं ताकि वो हड्डी अंदर से हिट ना करे वो स्नायु को। ये ट्रीटमेंट हम यूके में भी करते थे पहले, और इट वाज स्टार्टेड इन सैन डिएगो ओरिजिनली इन ईयर 2004, बट इंडिया में अभी भी उतनी कॉमन नहीं है। सो वी डिड इट फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2009 इन बेंगलोर, एंड इन अहमदाबाद वी डिड इट ओवर लास्ट 3 to 4 years इन अ फ्यू पेशेंट्स, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। और एक पेशेंट का तो दोनों एल्बो का वो ट्रीटमेंट हमने किया। शी इज़ अ लवली हाउसवाइफ and very active lady, and now she can do everything which she was not able to do before. तो ये जो छोटी सी सर्जरी है टेनिस एल्बो की, रीजनरेटिव सर्जरी हम नाम यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद सही पेशेंट में, अगर सही तरीके से एक्सपर्ट अपर लिम्ब सर्जन जिनको इस टेक्निक का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है उन्होंने किया तो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक टेनिस एल्बो की बात हुई। That is a very good information, doctor. Actually, particularly, I would like to say for the lady viewers who are the multitaskers. So, आपको कुछ भी अगर छोटा सा ऐसा कुछ पेन हो तो don't take it for granted, and आप उसकी सही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं at the right time. So, next question is, doctor, what is carpal tunnel syndrome? तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, ये यहाँ जो अपनी कलाई रिस्ट है, कांडू जे છે આપણું, ત્યાંની નસ દબાઈ જવાથી આંગળીઓની અંદર નસ દબાય એટલે ઇલેક્ટ્રિકના કેબલ જેવી નસ હોય, ધ નર્વ, ધ મીડિયન નર્વ ઇઝ લાઇક એન ઇલેક્ટ્રિક કેબલ. તો આંગળીઓમાં જણજણાટી દુખાવો થવો, અંગૂઠામાં જણજણાટી દુખાવો થવો, નમનેસ, બહેરાપણું આંગળીઓમાં આવી જવું, આ રાત્રે વધારે થાય છે. ઇટ હેપન્સ મોર એટ નાઇટ एंड देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग इन द डे ऑल्सो. एंड अगर उंगलियों में सूनापन आ जाता है तो चीज़ें ड्रॉप हो जाती है, बटन अच्छी तरीके से बंद नहीं हो सकते हैं, और एंड में जो हाथ के स्नायु है वो भी कमज़ोर हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम. इट्स अ मैकेनिकल फिजिकल एंट्रैपमेंट ऑफ द नर्व इन द रिस्ट. ये हाथ का ज़्यादा यूज़ करने से होता है, तो आई एम सॉरी टू से इट, लेडीज़ में ज़्यादा होता है. और जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम हो, हाइपोथायरॉयडिज्म, उनको स्वेलिंग की वजह से होता है. डायबिटीज़ वालों को भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है उनको भी होता है, और प्रेगनेंसी में टेम्पररीली स्वेलिंग की वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है. वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ. डोंट टेक इट एज ए मेडिकल कंडीशन. वो इट्स ए ब्यूटीफुल फेज, तो आप डरिएगा मत. ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादातर कार्पल टनल जो प्रॉब्लम होता है वो कुछ दवाई या तो एक स्प्लिंट आती है स्पेशल, वो पहनने से अच्छा हो सकता है. उसका निदान के लिए कभी कभी इलेक्ट्रिक टेस्ट करनी पड़ती है. अगर इन सब चीज़ों से अच्छा नहीं हुआ, वेरी ओकेजनली इंजेक्शन कैन बी गिवन, और छोटी सी प्रोसीजर होती है, सिर्फ इतने पार्ट को सुन करके हम 15 मिनट में वो प्रोसीजर करके परमानेंट क्योर दे सकते हैं. काफ़ी पेशेंट्स हमने ट्रीट भी किए हैं. और कार्पल टनल सर्जरी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहेंगे ग्रीष्मा जी, अगर कि in the central hall of the Royal College of Surgeons of London, I was invited to present my work on carpal tunnel surgery some years ago. और उसमें हमने
वो एविडेंस क्रिएट किया जो पहले नहीं था, जो प्रूव किया रादर, कि अगर आप कार्पल टनल की सर्जरी ज़्यादातर टाइम यहाँ टूर्निकेट पट्टा लगा के फिर की जाती है ताकि स्वेलिंग ना हो, मगर काफ़ी पेशेंट्स को ये पट्टा बहुत टाइट लगता है और सर्जरी के दौरान पेन होता है। तो हमने एक नई टेक्निक डेवलप करी जिसमें पट्टे की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ यहाँ अलग किस्म का इंजेक्शन दे के विदाउट द टूर्निके आई डू कार्पल टनल सर्जरी, देन ब्लीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड पट्टे वाला जो पेन है, टूर्निके पेन, दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. So I had the great privilege and humble honor of presenting that paper in Royal College of Surgeons 500 years old building. The building is next to the London School of Economics and the main law schools of London where Gandhi ji and Ambedkar ji and Nehru, Sardar Patel, they all studied. तो इसीलिए दूसरी ये भी चीज़ है कि आपके फैमिली में भी कोई डॉक्टर हो, यंग डॉक्टर हो, उनको भी आप एनकरेज कीजिए कि रिसर्च इज़ नॉट जस्ट थियोरेटिकल, इट कैन मेक डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स. तो कार्पल टनल की बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट एपिक हॉस्पिटल में हम करते हैं, डे सर्जरी से ओवरनाइट स्टे से, जैसी पेशेंट की ज़रूरत और सहूलियत. Great to hear that, doctor. So, orthopedic super specialist किन डॉक्टर को बोलते हैं? ये जो शब्द है सुपर स्पेशलिस्ट, वो बहुत स्पेसिफिक है कि ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बात करें तो अगर आपके पास सुपर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग हो कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड और क्रेडिबल है, कि आपने इंटरनेशनली रिकग्नाइज सेंटर में समझ लीजिए कि शोल्डर और एल्बो सर्जरी की ट्रेनिंग ली है, रिस्ट और हैंड सर्जरी की ट्रेनिंग ली है, और ऑब्जर्वरशिप नहीं कि आप 2 हफ्ते के लिए ये कहीं खड़े हो गए और वापस आ गए यहाँ, या तो 2 महीने के लिए खड़े हो गए वापस आ गए, ऐसा नहीं. जैसे हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी, अमेरिका में USMLE देनी पड़ी थी, और उसके बाद हमें क्लिनिकल फेलोशिप इन अपर लिम्ब सर्जरी मिली थी वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में, लिटिल रॉक आर्कांसा में. और उसी तरह पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है बच्चों का, उसके भी कुछ डिफॉर्मिटीज़ के लिए. फिर बोन ट्यूमर का जो एरिया है, फुट एंड एंकल है, नी है, हिप एंड पेल्विस है, ये सब सुपर स्पेशलिस्ट एरियाज़ हैं. उसमें से जितनी भी ट्रेनिंग आपने ली है उसके आप सुपर स्पेशलिस्ट हो सकते हो. But and also you should have super specialist qualifications like MCH Orth, which I have worked very hard to achieve from UK, and FRCS, not just basic but FRCS Ortho, which is a super specialist qualification. So 10 years of my life after doing MS Orthopedics were spent in obtaining this extra training. Then only I became a consultant in the UK, and that also for another 16 years. So वो महायज्ञ है, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि आप ये चेयर में बैठे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. काफ़ी पसीना बहा है, काफ़ी सेक्रीफाइस मैंने और मेरे फैमिली ने दिया है, तब सुपर स्पेशलिस्ट सही मायने में बन सकते हैं. ओके, यस डॉक्टर, करेक्ट. सो डॉक्टर, व्हाट इज बेसिकली ट्रिगर थंब और ट्रिगर फिंगर, एंड उसकी ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो ट्रिगर थंब जो है ये अंगूठे का प्रॉब्लम है. काफ़ी लोग आते हैं कि मेरे अंगूठे में यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, और फिर जब हम यहाँ से ऐसा करने जाते हैं तो अटक जाता है, और फिर सीधा होने में दर्द होता है. वो वेरी कॉमन कंडीशन बच्चों में भी होता है, और हमने कुछ बच्चों का भी ऑपरेशन इसके लिए किया है. बट ये यहाँ जो स्नायु होता है जो यहाँ से आके अंगूठे में जाता है, वो यहाँ एक स्वेलिंग बिकॉज ऑफ अ लंप, इट गेट्स स्टक, so it gets pressed, so it's very painful, very sensitive area of the hand, and then it वो जो आपका स्नायु है, तंतु है, टेंडन, वो स्टक हो जाता है. तो शुरुआत में तो आप गर्म ऑयल का मालिश करें या अल्ट्रासाउंड ले फिजियोथेरापिस्ट के पास, थोड़ी एक्सरसाइज करें तो अच्छा हो सकता है. देन समटाइम्स वी गिव इंजेक्शन टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. इट डजंट गेट बेटर, देन वी जस्ट इतने पोर्शन को सिर्फ सुन करके लोकल एनेस्थेटिक में वो लंप को रिमूव करते हैं. इट गिव्स यू परमानेंट क्योर. उसी तरह फिंगर्स में भी ट्रिगर फिंगर हो सकती है. डायबिटीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को ज़्यादा होता है, बट इट इज़ परमानेंटली क्योरेबल एंड ट्रीटेबल. एंड हियर एट एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद आई प्रोवाइड दैट ट्रीटमेंट वेरी रेगुलरली. तो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट टू डिले. अपने वहाँ यही है कि लोगों को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का उतना डर घुस गया है. इनफैक्ट डॉक्टर्स आर अफ्रेड ऑफ अदर डॉक्टर्स, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बिन जरूरी टेस्ट हो जाएंगे, बिन जरूरी सर्जरी हो जाएगी. मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं अपने देश में, आपको पता होगा कि होता है कि नहीं होता है.
मगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपका सही निदान में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और टाइमली एंड एविडेंस बेस्ड एक्सपर्ट ट्रीटमेंट देने में इंटरेस्ट रखते हैं. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ विजिटिंग अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल. एंड तो ये ट्रिगर थंब ट्रिगर फिंगर जैसी बीमारियां परमानेंट नहीं हो जाएगी. Yes, correct. Doctor, what is thumb arthritis? Is it common and उसकी treatments क्या होती हैं? यस, अभी थंब आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन. समझ लीजिए कि किसी भी समय पे 1.5% पॉपुलेशन को थंब आर्थराइटिस होता है. तो आप अहमदाबाद में 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 लाख लोग घूम रहे होंगे थंब आर्थराइटिस के पेन के साथ. अभी उसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं. 75% of thumb arthritis patients are women in their 50s. ठीक है? And I had to operate on a very dynamic and active leading practicing female physician to cure her thumb arthritis so that she could go back to her practice without thumb pain. Because जो thumb है, अंगूठा है, वो अपने हाथ का 40% है अलोन. बाकी की उंगलियां मिला के 60% है, यानी ईच फिंगर इज अराउंड 15%. 15 टाइम्स 4 इज 60. और थंब अकेला जो है वो 40% हाथ का काम करता है. तो इसीलिए जब थंब में अंगूठे में आर्थराइटिस होता है तो काफ़ी चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को मूव करना, हर एक चीज़ में दिक्कत होती है. और थंब आर्थराइटिस का निदान कैसे होता है? पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री अच्छी तरह से लेने से, फिर बाद में ज़रूरत होने पे एक्सरे करते हैं. थंब आर्थराइटिस के लिए एमआरआई स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड सारवार में कभी कभार हम सपोर्ट देते हैं, अर्ली स्टेज में इंजेक्शन दे सकते हैं. और फिर अगर हड्डी काफ़ी बिगड़ चुकी है तो वो जो बिगड़ी हुई हड्डी है जो अंदर नुकसान कर रही है, जैसे अपेंडिक्स बिगड़ा हुआ है तो निकालना पड़ता है, तो वो बिगड़ी हुई हड्डी को निकाल के अंदर थोड़ा स्पेस में टेंडन भर देते हैं ताकि आपका अंगूठा जो थंब है वो पेन फ्री हो जाए और आप उसको सही तरीके से फिर वापस डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर पाएँ. सो इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन. अगेन पीपल आर अफ्रेड बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमनली डायग्नोस्ड, इट इज़ नॉट कॉमनली ट्रीटेड. जब हम ऑर्थोपेडिक की सर्जिकल ट्रेनिंग कर रहे थे 30 years ago in Ahmedabad, hardly anybody knew about breast cancer. Now everybody knows about breast cancer. So awareness is important. काफ़ी चीज़ें होती हैं मगर ढकी हुई होती है. What is the purpose of Epic Hospital doing this live Facebook program? In my opinion, one of the purposes is to raise awareness कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो उसका निदान भी अवेलेबल है यहाँ एपिक हॉस्पिटल में और उसकी सारवार भी अवेलेबल है इन द मोस्ट एक्सपर्ट एंड एक्सेलेंट वे. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट इश्यू है. और ज़्यादातर लोग आज अकेले रहते हैं, लोगों के बच्चे प्रदेश चले जाते हैं या तो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली चले जाते हैं आईटी में जॉब लेके. अहमदाबाद वाले थोड़ा धंधे में ज़्यादा रस रखते हैं तो बच्चे ज़्यादा रहते हैं अहमदाबाद के अंदर. बट स्टिल आई सी एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं इसको, घर का जो घरनो माड़ो खाली થઈ ગયો. So the elderly people are increasingly living alone, so they need to use their arms much more. पहले तो बोला था कि बेटा बहू पानी लाओ, ये सब कुछ हो जाता था. अब वो लीली वाड़ी नहीं रही घर में. सूखा बंजर घर होता है, बंगला होता है बढ़िया, मगर सूखा बंजर जैसा होता है. यस और नो? करेक्ट. तो इसीलिए पीपल नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट फिजिकली. When you need to be more independent physically, then आपके अंग का ज़्यादा यूज होता है. Your arms and legs have to be used more. Then you need to get them in good shape and good condition. That is where the orthopedic treatment comes in, because orthopedic treatment is about pain-free, good quality of life. Yes, true, doctor. So would also like to ask that which joint replacements in upper limb are offered in Epic Hospital? सो जैसे काफ़ी लोगों को नी और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में तो पता है ही. यहाँ हम शोल्डर रिप्लेसमेंट, उसकी 2 या 3 कैटेगरीज होती है. एक फ्रैक्चर के लिए होती है शोल्डर रिप्लेसमेंट की कैटेगरी, फिर एक आर्थराइटिस के लिए होती है घसारा जो जॉइंट का, और तीसरा जो रोटेटर कफ स्नायु के डैमेज से शोल्डर डैमेज होता है उसके लिए, और चौथा कभी कभार बोन ट्यूमर के लिए.
तो ये 4 किस्म की कंडीशन के लिए शोल्डर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है. One of the most complex and advanced shoulder replacement is known as reverse shoulder replacement, जो भी हम यहाँ ऑफर करते हैं. I have 15 plus years of experience of doing reverse shoulder replacement. So in selected patients, it is very successful in relieving the pain. Similarly, we offer elbow replacement when there is advanced painful arthritis, either rheumatoid arthritis or osteoarthritis of the elbow. तो वो भी पॉसिबल और रूटीन जैसा सर्जरी है अभी. एंड वी ऑल्सो ऑफर रिस्ट रिप्लेसमेंट इन वेरी सिलेक्टेड पेशेंट, उसके लिए भी पूरी फैसिलिटी है हमारे पास. लास्टली जो उंगली के नकल्स होते हैं, एमपी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं. सो आई हैव बीन ट्रेन्ड स्पेसिफिकली इन हैंड सर्जरी, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. बट उसके इम्प्लांट्स जो हैं वो परदेश से मंगाने पड़ते हैं स्पेसिफिकली फॉर ए सिंगल पेशेंट. तो ये अपर लिम्ब में जॉइंट रिप्लेसमेंट इज एज routinely doable as it is in the lower limb for the correct patient. Okay, and what are trauma and fractures in upper limb? तो जो इंजरी और एक्सीडेंट है अपने देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, क्योंकि दुनिया में अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का रेट देखें तो चाइना वैसे पॉपुलेशन में हमसे थोड़ा ज़्यादा है आज भी, फिर भी चाइना में रोड एक्सीडेंट का जो रेट है वो हमसे 5 गुना कम है. हमारे देश में एक्सीडेंट्स और ज़्यादातर वो पहले ट्रॉमा और फ्रैक्चर्स से पहले भी एक्सीडेंट की बात करनी ज़रूरत है, क्योंकि कॉज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. लोग गलत साइड में शॉर्टकट लेकर ड्राइव करते हैं, फिर उनकी खुद की जान चली जाती है या दूसरों की जान ले लेते हैं. अंडर कटिंग करते हैं, गलत साइड से ओवरटेक करते हैं. लाइट स्विच ऑन करनी हो आफ्टरनून इवनिंग के बाद कार की तो नहीं करते हैं, और स्पीडिंग करते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं. ये सब वजह से, और टू व्हीलर को ऐसे चलाते हैं जैसे कि कोई पवन पावड़ी हो या तो कोई मिसाइल हो. एंड हेलमेट नहीं पहनते हैं. अहमदाबाद की लड़कियों को तो पता नहीं क्या हो गया है कि बाल की ज़्यादा चिंता है मगर ब्रेन की चिंता नहीं है. So all these are the reasons why accidents are so common, and they happen in young productive age people. It's a national tragedy of India that we lose so many lives. It is worse than a war every single day on our roads. So wear a seat belt, put a helmet on, drive with the lights on, drive slowly, don't drink alcohol and drive. It is not cool at all. Once you come to hospital with accident, ये सब कूल वाली और स्वैग वाली बात ऐसे निकल जाएगी, बाद में वो वर्ड्स भी पूरी जिंदगी यूज नहीं कर पाओगे, समझे. तो अभी टॉकिंग अबाउट फ्रैक्चर्स इन द अपर लिम्ब, शोल्डर फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन इन एल्डरली, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी. ओके, एंड आई ट्रीट 90% ऑफ शोल्डर फ्रैक्चर इन एल्डरली पीपल विदाउट सर्जरी वेरी सक्सेसफुली. सो इफ यू आर टोल्ड कि ये हड्डी ऐसे खिसकी हुई है, ये है, वो है, feel free to take my opinion. I will tell you whether you need surgery or not, and I will responsibly take you to the conclusion of your treatment successfully, not just tell you. So trust me and come to me at Epic, and your shoulder fracture, if it is treatable without surgery, I will do it without surgery. If you need surgery, we use the best implants and make it better also. फिर भी एक कॉलर बोन जो है वो भी बहुत कॉमनली इंजर्ड होता है. बच्चों में कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, and in adults sometimes you need surgery. When I was in England, I had to treat an Olympic player 4 months before the Beijing Olympics in 2008, and we had to operate on him, and he then went into the Beijing Olympics and won bronze medal in his particular sport in Olympics. So when it is needed, you have to treat it. फिर रिस्ट फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन एट ऑल एज ग्रुप्स. हर एक एज ग्रुप में, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है गिरने से, और यंग लोगों में भी होता है. ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का सॉफ्ट हो जाना, उसकी वजह से भी रिस्ट फ्रैक्चर कॉमनली होता है, अगेन इन लेडीज, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस एंड बोन सॉफ्टनिंग आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर. एंड ज़्यादातर लेडीज अपनी हेल्थ का ख्याल कम रखती है, दूध पीती नहीं है, लगती है कि फैट हो जाएंगे, फुल फैट मिल्क है. ऐसा कुछ होता नहीं है. मिल्क में जब आप शक्कर डालते हो तब आप फैट होते हो. नॉर्मल मिल्क पीने से कोई फैट नहीं होता है खाने से.
तो take care of your bone health, then you can prevent the fractures also. Some wrist fractures will need surgery, जिसमें प्लेट वगैरह डालनी पड़ती है, and but majority we can treat with plaster and pulling it in good length, or sometimes putting small wires. Again, elbow fractures not that common, but when happen they are very severe, and some elbow fractures definitely need surgery. And hand, जो हाथ के fractures हैं, उसको अलग अलग किस्म की स्प्लिंट से, सपोर्ट से, विदाउट ऑपरेशन ट्रीट किया जा सकता है. एंड सम विल नीड स्पेशलिस्ट फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, वो भी करते हैं. वी हैड टू ट्रीट रिस्ट फ्रैक्चर, जो स्केफोइड बोन है, इन अ नेशनल लेवल प्लेयर ऑफ इंडिया नॉट सो लॉन्ग अगो इन हिज स्पोर्ट. ही इज नाउ बैक इन हिज स्पोर्ट, एंड हिज टीम हैज एक्चुअली वन international trophy in the sport also. So if you need surgery, we can do it at world class level, because my function has been at world level. So it is not just a claim, it is my life. And orthopedics is not just my passion or my profession or vocation, it is my devotion and my worship. So इसीलिए I feel very honored to be attached to Epic Hospital, जहाँ हर एक अलग स्पेशलिटीज़ में भी इसी किस्म की ट्रीटमेंट, हमारी पूरी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की भी बढ़िया टीम है, कलीग्स हैं. आई कैनॉट क्लेम टू बी द बेस्ट, हर एक अपने तरीके से बेस्ट ही हैं. तो ये सब अपर लिम्ब के बारे में आज काफ़ी और बातें भी हो सकती है, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर कंडीशंस. टेनिस एल्बो है, उस तरीके से गोल्फर्स एल्बो है, फ्रैक्चर्स हैं, रेडियस अल्ना के हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके कंडीशन है, उसमें रिस्ट और हैंड में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उसकी भी सारवार हम करते हैं. तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए डेली हमारी ओपीडी अवेलेबल रहती है यहाँ मंडे से सैटरडे, करीब 1 से 6 बजे के बीच में. एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम एंड वी कैन सी यू एंड गिव यू प्रॉपर डायग्नोसिस. एक्सरे की भी डिजिटल एक्सरे बेस्ट क्वालिटी के हैं अवेलेबल यहाँ एपिक हॉस्पिटल में. सीटी स्कैन की भी फैसिलिटी है. लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से भी हम सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि शोल्डर मसल डैमेज, उसका डायग्नोसिस हाथों हाथ कर सकते हैं. और कार्पल टनल वगैरह के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट करना है तो उसका भी इक्विपमेंट मेरी केबिन के सामने ही है, तो वो भी हो सकता है. सो वी हैव अ फुल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हियर एट एपिक हॉस्पिटल. Okay, that was very informative, doctor. And I think जो general common orthopedic conditions होती हैं वो we as a people take it very lightly, and जो आगे जाके in turn बड़ी problems हो सकती हैं. So people, viewers, थोड़ा awareness लाइए, and कुछ भी हो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं to prevent all these things. So once again, thank you so much, doctor, for joining us and educating us about the shoulder and two hand problems, diagnosis and its treatments. And thank you, dear audience, for tuning in this Sunday morning. We hope most of your common queries related to oral cancer have been clarified. However, if you still have any doubts and wish to seek an appointment with Dr. Keyur Buch, we are putting in comment section a contact number where you can call and book your appointments. We will see you all again soon with many such interesting discussions. And for more updates, don't forget to like, share and subscribe to Epic Hospital's page on Facebook, Instagram and LinkedIn. Thank you so much, doctor. Thank you, viewers. Grishma, just one small correction. You Sure. said oral cancer. This is not the oral cancer talk. This is orthopedic problem talk. So and specifically आज की जो बात थी वो कंधे, शोल्डर, एल्बो यानी कॉनी, और रिस्ट और हैंड यानी कलाई, कांडू और हाथ, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में थी. और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप एपिक हॉस्पिटल में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. फेसबुक में भी एपिक हॉस्पिटल का पेज है और हमारा भी ऑर्थो डॉक्टर केयूर बुच पेज है, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ट्विटर में बेस्ट ऑर्थो डॉक्टर और BESTORTHODR, और इंस्टाग्राम में बेस्ट ऑर्थो सर्जन सिंगल वर्ड. ये सब हैंडल्स हम बहुत एक्टिवली पब्लिक अवेयरनेस के लिए फ्रीली यूज़ करते हैं. यूट्यूब चैनल ऑल्सो देयर, डॉक्टर केयूर बुच बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन करके, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं टू कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम. एंड ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ पेन फ्री लाइफ. नमस्कार, एंड नाइस ऑफ यू ऑल टू जॉइन. Thank you.